and DD India. Next 1 hour, we'll be taking all your queries on COVID-19. You can call us, numbers will be flashed in some time, and also you can ask your questions on social media handles also on Facebook and Twitter. Yes, numbers are there, 011-2338-7031, and mind you, these are Delhi numbers, so you need to prefix 011 before you dial the landline number, and the second number is also being flashed on your screen, is 2309-7655. So any query you have related to COVID-19, you can give us a call and post your questions on social media, that is Facebook and Twitter, and with me is my colleague Rajni. शुक्रिया अभिषेक। डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। तो हम जैसा कि बार बार अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि जिन बुनियादी सावधानियों की हम बात कर रहे हैं, हमें अगर कोविड संक्रमण से बचना है तो उन सावधानियों को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा, अपनी जीवन शैली में उसे लेकर आना होगा, क्योंकि बतौर नागरिक हम सभी की जिम्मेदारी है कि न केवल अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, बल्कि जो हमारे आसपास लोग मौजूद हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही तरफ है। मास्क पहने, हाथों को बार बार धोते और वो सभी व्यवहारों को, उन सभी व्यवहारों को अपनाएं जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन में आपको बार बार बताया जा रहा है, उनका पालन करें। तो अगले 1 घंटे में कोविड संक्रमण से जुड़े सवाल आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं, उनका हम आप तक समाधान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। Absolutely, Rajni, and the guests have joined us, Dr. Ghanshyam Pangte, who is the Professor, Department of Medicine, Lady Harding Medical College. Welcome, Dr. Ghanshyam. Dr. Vibha Mehta is also with us. She is Senior Consultant Physician, and Dr. Manjari Tripathi, she has also joined us, who is the Professor, Department of Neurology, AIIMS. Welcome, all of you. And if I can come to you, Dr. Ghanshyam, first. Recovery rate is almost 61.13%, but the active cases are also declining. But the number of cases for the last 1 week, if we see over 20,000 cases every day, my question to you is, how do we stand as of now, as of today? Yes, you are correct that our numbers are slightly increasing every day and day, but these cases are in different cities. So we should see that where are the cases which are increasing and where the cases which are coming down also. If we take an example of Delhi, we had around last week of June, we have up to 3,900 to 4,000 cases of new active cases were detected that time, and now it has markedly reduced. It's come to 2,000 for last 2-3 days. So it is coming down in cities like Delhi. It has come down to cities like Ahmedabad, it has come to in Jaipur, while some cities are there like Bangalore, and in Karnataka some cases are rising. So we should take overall that which are the cities which are rising, there we should be more cautious and we will increase our overall infrastructure. While cities which are controlled, we should continue our effort and continue all hand hygiene, social distancing and mask use should be increased adequately. डॉक्टर विभा मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब कोविड संक्रमण की बात करते हैं तो बहुत सारे बदलाव हमारी ज़िंदगी में आए हैं जिन्हें हम चाहे ना चाहे हमें अपनाना होगा अगर हमें इस संक्रमण से बचना है। उसमें एक हैंड हाइजीन और मास्क को लेकर बार बार सावधानियां बताई जा रही हैं। एक दर्शक है, उन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ कॉन्टैक्ट इज़ डिफाइंड, और कितनी बार टच करने के बाद मुझे हाथ धोना चाहिए? क्या एवरी टच के बाद, हर बार किसी चीज को छूने के बाद मुझे हाथ धोना जरूरी है? नहीं, हर चीज छूने के बाद हाथ धोना जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके विसिनिटी में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोविड है, तो उस टाइम तो आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेनी है। अदरवाइज जैसे इफ यू आर स्टेइंग एट होम, तो अगर आपके कोई डोरबेल को कोई बाहर वाले लोग आके रिंग करते हैं या कोई आपके गेट को ओपन करता है, तो वो वाले सर्विसेज क्लीन करने हैं, और उनको टच किया है तो उसके बाद अपने हैंड्स वॉश करने हैं। बाकी अगर आपने किसी से मिले हैं या आपने अगर आपने कोई चीज बाहर से परचेज की है, तो उस टाइम पे आपने रैपर हटा के उसको आपने जब अपने हैंड्स वॉश कर लेने हैं, वो रैपर थ्रो कर देना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। बाकी अपना मास्क लोग बार बार टच करते हैं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। मास्क अगर आपने टच कर लिया आउटर सरफेस पे अपने, तो उसको आपको हैंड्स वॉश करने हैं विद सोप एंड वाटर इज द बेस्ट। और
even sanitizer if soap and water is not available. डॉक्टर विभा, इसी से जुड़ा हुआ उनका दूसरा सवाल भी है। राकेश पूछना चाह रहे हैं कि अगर डबल लेयर मास्क है और पहली लेयर को अगर छू लिया है तो क्या दूसरी लेयर तक पर भी वायरस आने का खतरा है? वैसे तो ट्रिपल लेयर मास्क इज द बेस्ट। डबल लेयर है, अगर आपने आउटर सरफेस ऑफ मास्क को छू लिया है तब ध्यान करना है जी। But Dr. Ghanshyam, और अगर आप खुद इन्फेक्टेड हैं तो फिर तो इनर लेयर में भी वायरस है, उसको डिस्कार्ड करना है प्रॉपर्ली इन अ क्लोज्ड बिन। Dr. Ghanshyam, in continuation of this question related to mask, every day we get a lot of questions related to mask. First question is related to layers, like Dr. Vibha also said that 1 or 2 layers of mask are enough, and for healthcare there is a different protocol. But my question to you is it safe to wear mask all the time, and is it recommended to wear mask indoors also, like we are working in the office, because it's a little dangerous also, because we are inhaling our breath all the time, carbon dioxide? Yeah, it's a very tricky question as such. So what I will say, like I work in a hospital setting. So in hospital, chances of contacting or meeting a COVID positive patient are slightly higher. So what happens there, where we use a N95 mask which has 4 to 5 layers, in which one of the layer is charged layer. That fabric is charged. So any virus particle, when they attach to that charged layer of fabric, it catches that virus and doesn't allow that to enter that thing. So other than that, if you are in a house, if you are only roaming inside the house where your family members are there, you don't need to wear a mask inside the house. In an office setting, there has been instances there that office person in a closed setting, there may be some chances of infection there. So better you use a mask, that will be appropriate. And regarding your query that you are inhaling same breaths, there has been studies that if you wear same mask for a longer time, so the CO2 or a carbon dioxide doesn't go such a high level that it can cause any injury to your health. Instead, if you exert, if you are running for a something like morning jogging and all, there it may be create a problem. So whenever you are wearing a mask, you should not over exert. So ज़्यादा exercise नहीं करनी है उस समय. Simple walking, simple talking, all these 3 layer, 5 layer masks are adequate. And other than public place, we usually use cotton mask which is single layer. And in hospital setting or place where slightly infection rate is more, you have a surgical mask which has 3 layers, while there is a N95 mask which has 4 or a 5 layer mask, which is especially for hospital setting, not for general public. ओके डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मंजरी, अब बरसात का मौसम जैसे आ रहा है तो दूसरी तरीके की बीमारियां भी बहुत सामने आएंगी। पेट दर्द को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं या फिर इन्फेक्शन को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल जाना अपने आप में बड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए और ख़ासकर जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, टेलीमेडिसिन को आप कैसे देखते हैं? बहुत जरूरी है कि कोई भी कारण से अगर अस्पताल जाना पड़े तो पहले आप कोशिश करें कि वो पर्टिकुलर अस्पताल टेली कंसल्टेशन दे रहे हैं कि नहीं। टेली कंसल्टेशन से मुश्किल कंडीशन भी एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट डायग्नोज हो सकती है और मैनेज हो सकती है। जैसे कि एम्स पे हम टेली कंसल्टेशन से ही अपने न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को देख रहे हैं। अब न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस सबसे कठिन डायग्नोसिस, सबसे चैलेंजिंग डायग्नोसिस मानी जाती है। फिर भी हम टेलीमेडिसिन, वीडियो कंसल्ट और फोन कंसल्ट दोनों से हम रफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इससे हम डायग्नोसिस या तो ईमेल से भेज सकते हैं या तो हम प्रिस्क्रिप्शन ओपीडी कार्ड पे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हॉस्पिटल विजिट्स हैं वो अन्य कारणों से कम हो सकती है और उससे फायदा ये है कि अस्पताल में जो है बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे अस्पतालों में कोविड के मरीज भर्ती हैं, तो सारा हॉस्पिटल का अटेंशन वर्कफोर्स उन पे लगा हुआ है, एक तरीके से जंग लगी हुई है। तो अगर हम अस्पतालों को सबसे कम बर्डन दे दूसरी बीमारियों से
और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उस बर्डन को हम कम करें, तो डॉक्टरों को एज वेल एज जो मरीजों को है बहुत सुविधा होगी। और कोई मतलब अगर बहुत ही गंभीर सिचुएशन है या इमरजेंसी आपातकालीन सिचुएशन है तो फिर तो इमरजेंसी में ही जाना है, बट रूटीन प्रोसीजर्स के लिए टेली कंसल्ट इज मोर देन इनफ। And also, Dr. Manjari, there's a question on social media. He's asking that he has been detected with COVID-19 and he's in home isolation and he has also already served 14-15 days. But he's facing a lot of mental issues. Should he go out? Should he touch this thing or not? Can he meet his daughter or not? He is going through that problem. He's saying that even if I go for the test and even if it turns out to be negative, that mental health, that mental issue will be there. I'm going finicky. What do you want to tell him? This is a very important issue, mental health issue in COVID. See, there has been a sudden change and this change has been unexpected. None of us planned or expected this condition. Yeah. And we have been exposed to this condition only for the past 6 months. From January onwards, we are exposed to this condition. And we have tried, every day to day there are changes happening. In fact, nothing can be fixed. Like this is the goalpost, this is fixed. No. So if in the house somebody has tested positive, the most important thing is to self-isolate. So they should be in a room. They should definitely not go and mingle with their children or even pets or grandparents. And the food should be just posted outside the doorstep. Now, in this particular condition of self-isolation, one can go two ways. One can go a level up and one can also go a level down. Now, we in India have a huge heritage of going a level up, and that heritage is by the power of positive thinking and yoga. I think it is very necessary that I know it is difficult for me and it's very easy for me to tell you and suggest to you as a patient, but please use this time to just breathe slowly. Join a yoga module. There are many modules available online, both national, international, and at least in the morning, empty stomach, just practice the breath meditation, the pranayam, for about half an hour. To begin with, you may start with 15 minutes, then go for half an hour, and then you can go for 1 hour. Now, what does this, positive breathing process, positive thinking do? It helps you liberate chemicals in your brain which are positive, which give you positive emotions. So even though the environment is suffocating, it's in a room, you're not used to this. See, human beings are social animals. Now you're confined to a room. So you have to survive this. The reason you have to survive this is because there are so many loved ones around you. And to survive this, you can use various tools which are so richly available to us. So I would strongly encourage that people use, develop a schedule in that confinement. You have your laptop, you have your iPads. So in that confinement, use that 1 hour in the morning, empty stomach, to do this. And then the rest of the time, develop a schedule, look at some books, look at some comics, look at, converse on WhatsApp with people who are going to pull you out of this situation, so that you don't go into a level down and then, once you keep going down, it's a deep recess. Right. So this is my suggestion to everybody who's in home confinement. It's not easy. It's easy to preach, but it's difficult to do. But I'm sure all of us can do difficult things. And in India, absolutely, living in the environment we are used to doing challenging things. So we should take this in our stride. We have to be extremely flexible. We should not be rigid in thinking that we should do this and that, and we are not able to do this and that. It's a temporary phase. We will pass over this. Absolutely. And Rajni, Dr. Vibha also want to contribute on this. I think she's smiling. You want to add anything to this, ma'am? Yeah, you see, I want to highlight 5 things which are going to help us fight COVID. Number 1 is positivity. Positivity in our attitude. Don't think negative way. Number 2 is healthy and balanced diet, rich in vitamins and minerals. Number 3 is doing yoga, exercises and meditation every day as a routine. Number 4 is good sleep. We must get a good sleep. And number 5, the most important thing,
is energizing our social network. That is, see, we cannot meet our friends or relatives, but we can always talk to them on the phone. Yeah. And in this era, video calling is so easy. So we should feel connected, not isolated. Whether we are diseased or not diseased, we are just staying at home for fear of going out. So we should practice social network by video calling. Dr. Vibha, you are mentioning balanced diet, you are saying good sleep, but can you elaborate more on this? What should be our balanced diet during these times, and what do you mean by good sleep? 8-9 hours? Yeah, 7-8 hours. Okay, and you want to elaborate on the balanced diet The also? diet, on diet, lots of fruits, vegetables, salads should be taken. Okay. And everything should be taken in a balanced amount. Like you can take coconut water, lemon water, and even all these kada being taken these days, but not too much of it. I've seen people taking too much of hot water and hot kada that they are having problems with their throat because of that. Too much of steam inhalation, because I'm in private practice and I'm the first contact for the patients as a family physician. And I see lots of them taking too much of hot things. That is not recommended. 1 or 2 times in a day, I think, should suffice. It is already too hot these days. जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, सुकन्या जुड़ गई हैं दिल्ली से अपने सवाल के साथ। सुकन्या, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। Recently we came to know that coronavirus is airborne. Some research papers have come out, and in the news we are saying. So now, what additional precautions should we take to protect ourselves from corona if it is airborne? जी, डॉक्टर घनश्याम, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? Yeah, there has been recently some news that some of the scientists up to 239-40, they have recommended that coronavirus may be airborne. So normally what we think, or what has been promoted for last 4 months, that it can be a droplet, mainly it's a droplet infection. It can go up to a distance of 2 meters. So जब हम खांसते हैं, जैसे आपने खांसी किया, तो up to 2 गज की दूरी जो हम बना के रखते हैं, तो they mean to say that social distancing itself cannot be very safe. But we don't have to worry much about that, because we also in India, we have already said that everyone has to wear masks. So if you wear a mask, the chances of making these aerosols, small particles smaller than these droplets, is very, very less likely. So if both the person is wearing a mask, so chances of these aerosols is almost out in public setting. So most of the time, this aerosol generation occurs in ICU setting. So if you have a closed enclosure, it's a closed room or something like a hall here where 5-10 people are coming routinely, or they are sitting there. If you eat there something, if you talk there without mask, the chances are there, some chances are there, it's not proven, that they may generate some aerosol which may remain there in the environment or air for 3 hours or 4 hours. But it's not proven, so nothing to worry. But still, we recommend don't go to a place which is an enclosed place like a cinema hall. Avoid eateries where is a closed surrounding. Wear mask, because if you go to a eatery shop or a restaurant, there will be, you have to bring your mask down, then only you can eat. So there you may get exposed. So if you are wearing a mask, nothing to worry. In a walking in a public place with a mask, chances are very less aerosol. Only thing is enclosed area and in a hospital setting, aerosol may be some issue, but still WHO is not reviewing this thing, and maybe after 2-3 days or maybe a week, they may give you some clue. But we are safe if we are wearing masks in these enclosed But Dr. areas. Ghanshyam, if you are saying, I mean, it's not been proved, we agree, but if it's an airborne infection, airborne virus, then we'll have to wear mask indoors also, because you're saying that it will be in the air for 3-4 hours. Yeah, if you are in a home, I already said, you are in a home setting, if someone is COVID positive, chances of family getting a COVID is slightly high. Okay, there it's very difficult to prevent this infection. But in a office area, there, if it is airborne, chances of their infection is there. There you have to wear mask. Any place you go, wear a mask. It will avoid your infection. I'm still not saying that it is confirmed that it is aerosol
aerosolization is there in all COVID infection. Second thing is our environment outside is very hot. So these studies are mostly from Western countries. Their temperature are slightly lower side, where these flu-like viruses are more able to stay there in the environment. So we don't have any study from India. So that is a different thing. But Right. still, I'm saying that in an enclosed area where more people are going there, slightly chances are more. There you should be, as a precaution, wear a mask. बिल्कुल। डॉक्टर घनश्याम, बड़ी अहम बात आपने दो बातें कही हैं और उन दो बातों के साथ मैं डॉक्टर मंजरी के पास जाना चाहूँगी। पहले तो आपने कहा कि बहुत ज़रूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप जाने से बचिए, सिनेमा हॉल या फिर मॉल और इन सारी जगहों पर। डॉक्टर मंजरी, मेरा आपसे सवाल है कि वो लोग जो अकेले रह रहे हैं, परिवार के साथ नहीं है, शारीरिक सेहत से ज़्यादा कभी कभी उनके ऊपर मानसिक सेहत हावी हो रही है, अकेलापन उन पर हावी हो रहा है और कहीं ना कहीं वो निराशा में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जब मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो शारीरिक परेशानियां भी घेर लेती हैं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर विभा ने बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेन पॉजिटिव, और इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम आइसोलेट तो हुए हैं पर हम नेटवर्क के दौरान द्वारा जैसे कि सोशल नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कनेक्टेड रहें अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से। और अगर माइंड में जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव माइनस में जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम ये थॉट्स जो नेगेटिव में जा रहे हैं तुरंत पकड़ लें, एंड वी डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद दोज थॉट्स, और वी डू नॉट जनरेट stories out of that thoughts which go on to the negative sphere again and again. So continuous rumination, continuous thoughts अगर negative में जा रहे हैं, हम शुरुआत में ही उसको अगर हम awareness के द्वारा pick up कर लें and we don't get involved with them and go on उसके साथ हम लग जाएं और एक कहानी बन जाए कि अच्छा मैं बीमार हूँ तो मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं यहाँ देहांत हो जाएगा. So you have to catch that thought right in the beginning. And you must converse about these negative thoughts with your friends or your doctor. So do not keep these thoughts to yourself. Mental health में the biggest जो घातक चीज होती है वो है कि जो इंसान है वो जो थॉट्स है अपने तक ही रखता है, और अपने जो करीब लोग हैं या अपने डॉक्टर्स का नेटवर्क है या होम फिजिशियन जो है उनके साथ वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बिकॉज देयर आर सच सिंपल मेथड्स टू कन्वर्ट दीज थॉट्स. नाउ ऑफ कोर्स some are pharmacological, some are non-pharmacological. So matlab help is available provided you are aware of these thoughts and you communicate these thoughts to your friends and your doctors. Yeah, it's very, very important. But Dr. Manjari, is it something to do with the immunity also? If you are thinking negative all the time, if the thoughts are not positive, does it affect our immunity also? देखिए, there is a complete division of medicine specialty called psychoneuroimmunology. Yeah. Now, what is the psychoneuroimmunology? Your psyche determines your immunity. If your psyche is weak, if you are not, if you are going into a negative mode, then your immunity will also come down. So, for recovery, it is important that the psyche be in the positive side. And again, it is not just. It's very easy again for me to say these big words. But it's also very important to understand that you cannot isolate the body. Now, we exist in different realms. For a human being, we exist in a physical realm, we exist in a emotional realm, we exist in a spiritual realm, and we also exist in a mental realm. So all these four realms are very important. You cannot just be concentrating on physical and neglect the other realms. You have to give importance to your mental health too, because your mental health will determine the physical health. जी, मतलब इस स्तर पर आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर ही ध्यान देना आपका बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर विभा, जब हम उस व्यवहार की बात करते हैं जो हमें संक्रमण से बचा सकती है, उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ बार बार कहा जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं. और ये बात कोविड आने से पहले भी हमारे व्यवहार का हिस्सा होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. स्वच्छ भारत अभियान में भी ये बात बार बार कही गई कि आप सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, लेकिन अब ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए और अहम हिस्सा होना चाहिए. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है. अभी भी मैंने देखा है लोग नहीं सुधरते, पान तम्बाकू खाते हैं और जगह जगह थूकते चले जाते हैं.
कितना समझाने के बाद भी रोज टीवी में आता है, हर जगह सोशल मीडिया में आता है, बट लोग नहीं समझते इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मुझे तो लगता है पेनल्टी लगानी चाहिए, ऐसे सुधरते नहीं है हमारी कंट्री के लोग। बिल्कुल, थोड़ा सा इनको फाइन करना चाहिए इफ दे आर कॉट स्पिटिंग इन पब्लिक। डॉक्टर घनश्याम, एक बात कही डॉक्टर विभा ने, फाइन लगाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर जो नॉर्म से अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो जुर्माना लगाया जा रहा है। कानून से क्या इस समस्या को हल किया जा सकता है? जो नॉर्म्स हैं, जो ज़रूरी हैं, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या उसके लिए कड़े कदम उठाना ज़रूरी है? बिल्कुल, आई थिंक डॉक्टर विभा ने आपको जैसे पहले ही बताया कि कई जगह पर अभी भी फाइन लग रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा पब्लिक पहले से थोड़ी सी डरी तो हुई है कि ये कोरोना आ गया है, हम कैसे डील करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक समय है हमारे लिए कि पब्लिक को जागरूक भी कर सकें और पब्लिक को समझाएं कि इस तरह से अपने हेल्थ एटिकेट्स इंप्रूव करें। मास्क पहनने से भी काफी चेंजेस आ सकते हैं कि उसमें थूकने में प्रॉब्लम होगी, उसको मास्क पहनेगा और वो गीला हो जाता है, मास्क भी गंदा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से फाइन लगाना, छोटा फाइन, आई थिंक सभी लोग तो फाइन भी नहीं दे पाएंगे, फिर और क्रिएट हो जाएगी कुछ प्रॉब्लम। तो फाइन अभी लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं और मेरे ख्याल से हमारे काफी नागरिक जागरूक हो चुके हैं और पहले से काफी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। एब्सोल्युटली डॉक्टर घनश्याम, यू आर राइट। या गो ऑन मैम। हाईलाइट करनी कि लोग जो कॉफिंग कर रहे हैं, मैंने देखा है यूजुअली मास्क तो नीचे किया होता है अपने नेक पे, मास्क लगाया हुआ है दिखाने के लिए, बट वो नेक पे है, नोज एंड माउथ कवर्ड नहीं है, एंड कॉफ कर रहे हैं नॉर्मली। तो उनको एजुकेट करना है कि कॉफ ऐसे नहीं करना है, कॉफ करना है तो एल्बो में करना है, मतलब या अपना टिश्यू पेपर ले रखें और जिसको फिर बाद में डिस्कार्ड करना है क्लोज बिन में। ये सारी चीजें समझनी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट मैम। हाँ जी, या एजुकेशन, अवेयरनेस। या गो अहेड मैम, गो अहेड। या कि लोग जो नॉलेज मिल रही है ना व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे, उसे ही सब कुछ मान रहे हैं। बहुत सारी फेक न्यूज जा रही है। तो अपनी नॉलेज जो फैक्चुअल है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं या जो WHO ने कहा है, वो मान के चलें। ये आप पब्लिक को बार बार समझाइए अपने मीडिया से, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं और कुछ ना कुछ घूमता रहता है व्हाट्सएप पे। प्लस सेल्फ मेडिकेशन जो कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ मेडिकेशन, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी फीवर इज एक्चुअली नॉट कोविड, सो दे हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड सम ऑफ देम फॉर फियर ऑफ गेटिंग डायग्नोस्ड कोविड विल नॉट कंसल्ट द डॉक्टर. In my practice, I have seen patients, one category of patients whom you do not want, you are not suspecting them of COVID, but still they're pressurizing you to prescribe you the test. And there is a category of patients whom you are prescribing the test, but they do not want to go कि अगर diagnose हो गया तो फिर क्या होगा, सारा मोहल्ला क्या कहेगा, क्या हो जाएगा. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ. डॉक्टर ऐसे भी विभा, लोग हैं जो सुन के करते हैं. हाँ जी. Yeah, but Dr. Vibha, people are concerned. Concerned about their elder members also who are at their home, and also for small children. But some people are on self medication in the sense that they are taking vitamin C, vitamin D, and also they are on multivitamins. And also, like Dr. Ghanshyam was also mentioning, that homemade kadhas and hot liquids they are intaking. I mean, is it recommended that to take multivitamins, vitamin C, vitamin D, and homemade kadhas? Vitamins तक तो ठीक है, but people are taking HCQS, azithromycin, doxycycline, ivermectin all by themselves, and some of them have even purchased steroids. They just they don't understand that a medicine that has been prescribed once is only for that patient, and it is only for once. It is they make it available for the whole family, and they will keep taking, they'll keep sharing it with their other family members, with their neighbors and all, and they all of them are purchasing those medicines and hoarding them in their homes, which is very wrong. बिल्कुल. और इस बीच सोशल मीडिया पर भी लगातार हमारे दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं. रजनीश सैनी हैं, वो जानना चाहते हैं, डॉक्टर घनश्याम अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, कैन वी गो इन फॉर नेजल सर्जरी इन कोविड पीरियड. अपनी नाक के ऑपरेशन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस वक्त जाना चाहिए?
बिल्कुल, ये कोविड के टाइम पे सर्जरी कराना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट उसमें ये रहेगा कि आप सर्जरी कहाँ करा रहे हैं। जैसे जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप बहुत सारे पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे, रास्ते में आपको ओवरक्राउडिंग भी मिलेगी। तो अगर आपकी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिफर नहीं की जा सकती है, बिकॉज कुछ महीनों में कोविड थोड़े कम हो सकता है आपके एरिया में। इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली, थोड़ा मे बी 2 वीक्स के बाद थोड़े केसेस कम हो जाएं, तो अगर इमरजेंसी है तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप इमरजेंसी कर सकते हैं। अगर सिंपल सर्जरी है, जैसे डेविटेड नेजल सेप्टम की सर्जरी होती है ईएनटी में, अगर वो सिंपल सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो आप अवॉइड करें। अगर इमरजेंसी है तो कराइए, प्रिकॉशन लीजिए। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो पूरे मास्क और उसको पहन के जाएं। एग्जामिनेशन में डॉक्टर भी पूरे प्रिकॉशन लेते हैं, आपको डॉक्टर को भी शील्ड पहनना पड़ेगा, बिकॉज ईएनटी सर्जरी में एरोसोल जनरेशन के थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ड्रिल और इसकी यूज़ करते हैं। तो अगर इमरजेंसी सर्जरी है तभी कराएं, और अगर इलेक्टिव है तो आप कुछ हफ्ते वेट करें तो वो बेटर है। Okay, and Dr. Ghanshyam, there is one more question for you. He's asking that what kind of tests have been developed till date and what is their processing time? बिल्कुल, आजकल पिछले 1-2 हफ्ते में हमारे पास काफ़ी टेस्ट आ गए हैं, जिसमें कि डॉक्टरों को भी और पेशेंट को भी समझना चाहिए कि उसको कौन सा टेस्ट कराना है। अगर आप 2 हफ्ते पहले की बात करते तो हमारे पास सिर्फ RT-PCR टेस्ट था, जिसको कि सिम्टम्स आने के बाद और लगभग 9 से 10 दिन तक ही कर सकते थे। उसके बाद रिजल्ट्स काफ़ी फॉल्सली नेगेटिव आते हैं। अब हमें आइडियली क्या करना चाहिए कि अगर हमारे पास सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, इनिशियल 5 से 7 दिन में आप RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सेंटर्स में अवेलेबल है और काफ़ी 4 महीने से चल रहे हैं। तो ये टेस्ट पहले से अवेलेबल थे, गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसके अलावा हमारे पास अब एक नया टेस्ट आ गया है, जिसको कि हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट को भी सेम मेथड सेम है, उसमें भी उसी तरह PCR की तरह स्वैब लिया जाता है, और इवन जिसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं हम वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं, VTM, वो भी सेम है। एडवांटेज ये है कि वो उसी समय रैपिड टेस्ट है, आपको 15 से 30 मिनट में उस टेस्ट के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो भी डॉक्टर या कोई टेक्नीशियन उस टेस्ट को कर रहा है, वो आपको 30 मिनट 1 घंटे में टेस्ट वहीं पर दे सकता है, तो आपको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तभी पता चल जाएगी। इस टेस्ट की स्पेसिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो वो 100% टू 99% वो पॉजिटिव टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। जबकि सेंसिटिविटी इसकी थोड़ी सी कम है, 60%, बट अगर आप PCR को लें वो भी 60 to 70% या 75% है। तो इट्स PCR के बहुत पास में है, और दोनों को एक ही मेथड से यूज करते हैं। तीसरा टेस्ट जो हमारे पास अब अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। इसको भी हम रैपिड तरीके से कर सकते हैं, इसके भी रिजल्ट 15 से 30 मिनट में मिल सकते हैं। इसको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। इसका डिफरेंस ये है कि ये जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट फेज चला जाता है, उसके बाद जब आप रिकवर कर रहे होते हो, जब आपके बॉडी एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बना लेती है, ये टेस्ट तभी उपयुक्त होगा। तो किसी को अगर आज हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, किसी को अगर अभी खांसी है, ब्रेथलेसनेस है, तो उससे आप काउंट कर लीजिए कम से कम 2 हफ्ते, तो 14 दिन के अराउंड हो जाएं, उसके बाद ये टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि 2 हफ्ते के बाद PCR टेस्ट नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गले में जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं, जहाँ से हम थ्रोट स्वैब या नेजल स्वैब लेते हैं, उसमें उस समय ये वायरस नेगेटिव हो जाता है, जबकि बॉडी में थोड़ा रहता है। तो उस समय 2 हफ्ते के बाद 2 से 4 हफ्ते में आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ था, अब आप रिकवरी फेज में हैं, बट ये एक्यूट इन्फेक्शन नहीं बताएगा। तो अगर आपका ये IgG, IgM 2 तरह के इसमें रिपोर्ट्स आती हैं। अगर ज़्यादातर जो ICMR के किट्स हैं वो IgG अप्रूव हुए हैं। अगर आपका IgG पॉजिटिव है, इसका मतलब आपने कोरोना वायरस लगभग 2 हफ्ते पहले हुआ था और आप रिकवरी फेज में हैं, आप इन्फेक्टिव नहीं हैं, आप अपने परिवारजन से मिल सकते हैं, आप सोशलाइजिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा आप बाहर जा सकते हैं, जो आप क्वारंटाइन या आइसोलेशन कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किसी का पॉजिटिव आया तो दुखी ना हो, उसको खुश होने की जरूरत है कि वो रिकवर कर चुका है, उसके पास एंटीबॉडीज भी हैं। अब उसको चांसेस है कि वो इवन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है अगले 14 दिनों में, 14 दिन के बाद। तो ये टेस्ट आपको एक तरह से बताता है कि आप कोविड या कोरोना वायरस के डिजीज से पार हो चुके हैं। तो इसको ये ना लगे कि इन्फेक्शियस रहे, तो ये बहुत जरूरी है। एंटीबॉडी टेस्ट रिकवर्ड पेशेंट के लिए है, एंटीजन या PCR टेस्ट इन्फेक्टिव स्टेज के लिए।
And the process also, Dr. Ghanshyam, the process of all these tests is अभिषेक, same? अभी एक कॉलर भी है, पहले Yeah, we'll come back to him. Yeah, we have a caller. Yeah. अनुरूप है हमारे साथ। अनुरूप, अपना सवाल पूछिए। Yeah, hi. Good afternoon, doctor. My question is regarding the grocery items which we receive from outside. Like generally we order and we get the grocery item. It is mentioned like the risk is low, but how low the risk is? Can we still get infected or contaminated with the parcel we receive? This is my question. डॉक्टर घनश्याम। ओके, आप ग्रोसरी की बात कर रहे हैं, जैसे सब्जियां आपने ली है, तो अगर आप सब्जियां लेके आते हो मार्केट में, आपको जो डीलिंग नोट्स से बहुत कम चांसेस है, बट ग्रोसरी को आप ठीक से धो लें, आप उसको रनिंग वाटर से धो लें, और कुछ स्टडीज ये भी हैं कि आप थोड़ा सा एल्कलाइज कर सकते हैं, सोडा बाइकार्ब यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप हैंड हाइजीन पूरा रखें। आपने अगर सब्जियां धो ली है, उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखें या कहीं पर रख लें। और कुछ एक ये भी एडवाइस रहेगी कि अगर आपने सब्जी लाई, कुछ देर के लिए आप साइड में रख सकते हैं, कोई टच न करे, 1-2 घंटे के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप वॉश करें, बट जब भी आपने ग्रोसरी या कोई आइटम टच किया है, उसके आप हैंड हाइजीन जरूर रखें। आप या तो 70% अल्कोहल का यूज करिए, या फिर स्पिरिट का मिले, अल्कोहल ही बेस्ट रहेगा इस समय। जी डॉक्टर मंजरी, आपके पास आना चाहेंगे। मानसिक सेहत को लगातार लेकर काम भी हो रहे हैं और लोगों को जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन एक चीज़ है जिसने सभी को परेशान किया है, खासकर उन लोगों को जो संक्रमण के बाद ठीक हो रहे हैं या उससे जूझ रहे हैं, जो सामाजिक भेदभाव है पड़ोसियों का या लोगों का, आसपास के लोगों का, वो कितना असर डाल सकता है किसी भी मरीज़ की सेहत को लेकर, और इसे कैसे रोका जाए? देखिए, जो ये स्टिग्मा है या भेदभाव है, ये बहुत कॉमन है और ये बहुत सारी बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एपिलेप्सी के साथ बहुत सारा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, उसके साथ बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिनके साथ स्टिग्मा गलती से जुड़ा हुआ है। अब ये भेदभाव क्यों आता है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है लैक ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर इंसान के पास करेक्ट नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं है, और जैसे मैडम ने कहा कि वो व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन पे ही चल रहा है, तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये जो बीमारी है, ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आप किसी से घृणा करें या किसी को नीचा देखें जिसको ये बीमारी है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। आज जो घृणा कर रहा है उसको भी हो सकती है कल। तो क्या आप इंसान होने के नाते जो बीमार है उससे सहानुभूति रखेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, उसको आप प्रिकॉशन समझाएंगे, या आप उसको अलग कर देंगे अपने लाइफ से? ये एक गलत चीज है और इसके लिए बहुत जरूरी है मीडिया का रोल कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट स्टिग्मा पे भी इंफॉर्मेशन पास करना बहुत जरूरी है। 2 प्रकार की ये भेदभाव होते हैं, स्टिग्मा होती है। एक तो है जो मरीज है उसको अंदर से महसूस हो, दैट इज नोन एज फेल्ट स्टिग्मा, मतलब अंदर से मरीज महसूस कर रहा है कि लोग उससे भेदभाव कर रहे हैं, सो दैट इज फेल्ट स्टिग्मा। एक है इनएक्टेड स्टिग्मा। इनएक्टेड स्टिग्मा है जो बाहर के लोग उसके ऊपर थोप रहे हैं, सो दैट इज इनएक्टेड स्टिग्मा। सो इन दोनों को टैकल करने के लिए एक तो फेल्ट स्टिग्मा जो है, जो इंसान की खुद की परेशानी है कि वो महसूस कर रहा है कि लोग उससे घृणा कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो मरीज है उसको सही इंफॉर्मेशन मिले। बीमारी हुई, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का पीरियड 2 हफ्ते है, उसके बाद जो है रिकवरी होती है, और रिकवरी के बाद जो मरीज है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। इनफैक्ट वो मरीज बहुत पावरफुल हो जाता है, जैसे कि डॉक्टर घनश्याम ने समझाया कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है। अगर आपके पास एंटीबॉडी आज के दिन में है, आप पावरफुल हैं क्योंकि आपका इन्फेक्शन बीत चुका है और आपको पावर है किसी और को प्लाज्मा डोनेट करने की। तो आपको फेल्ट स्टिग्मा होनी ही नहीं चाहिए। यू शुड फील मोर एम्पावर्ड, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव सफर्ड द इन्फेक्शन, यू हैव गॉन थ्रू द इन्फेक्शन, you can be now relieved and you are on the way to recovery, and you know whatever, and you can cure others also. You can cure others, so you should feel in fact more good and more empowered. जो इस घर हो गया, घर खराब है, मत जाओ, ये भी गलत है। डॉक्टर Manji, will come back to you. There seems to be a connection problem. Caller is calling us. He's from Kanpur. Ramtej जी, रामतेज जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल।
हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर एक प्रॉब्लम ये है, मेरी मिसेज को पाइल्स की इस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या इस समय सर्जरी को परफॉर्म किया जा सकता है, कराया जा सकता है? डॉक्टर विभा, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। देखो, पाइल्स की प्रॉब्लम ज्यादा है, बट मेडिकल ट्रीटमेंट से फिलहाल अगर सर्जरी टाल दी जाए तो दैट इज बेटर जी। मेन तो इसमें कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना होता है, और मेडिसिन है हमारे पास जो दे सकते हैं, तो अभी अवॉइड कर लो तो बेटर है जी। बहुत ही अर्जेंट सर्जरी नहीं है पाइल्स की सर्जरी जी। डॉक्टर विभा, आपने सवाल का जवाब दिया। आपसे अगला सवाल भी है कि इस वक्त जो मानसून का सीज़न आता है, बरसात का सीज़न आता है, अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है। उसमें से एक पेट खराब होना, उबकाई आना, ये मसले आम होते हैं। डायरिया भी एक लक्षण माना गया है कोविड का। तो फिर कैसे अंतर करें कि अगर इस तरह की कोई समस्या हमारे साथ हो रही है तो ये उस तरीके का संक्रमण नहीं है या बारिश से जुड़ी कोई आम बीमारी है? देखो, ये एकदम तो कहना मुश्किल है, बट कॉशियस होके चल रही हूँ मैं। तो जैसे पेशेंट को डायरिया है, फीवर आया या सिम्टम्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी से कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ कोविड वाले से, और पेशेंट को वार्न करके चलते हैं कि ये कोविड हो सकता है, अभी ट्रीटमेंट दे रहे हैं एज अ नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बट अगर कुछ और सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसा हमें फील होता है तो कॉन्टैक्ट में रहें, एवरीडे मुझे इन टच रहें। और फिर भी मैं तो एडवाइस कर देती हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल्स एंड बीपी ऑपरेटर से अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, हाइड्रेशन अपनी ठीक रखें, और जरूरत हो तो फिर टेस्ट कराते हैं कोविड का। बाकी तो मानसून में और डिजीजेस भी हैं जिनसे कई बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है इनिशियली। कुछ डिजीजेस हैं वाटर एंड फूड बॉर्न, जैसे डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, और कुछ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शंस हैं लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो अब इन सब में, डेंगू में भी, चिकनगुनिया में भी, मलेरिया में भी फीवर आ सकता है, और एनी फीवर कैन बी कोविड एट दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक। सो वी हैव टू बी केयरफुल, एंड वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द कोमॉर्बिड कंडीशंस प्लस द एज ऑफ द पेशेंट. If the patient is above 58 years of age and has some comorbid, and even if the age is less, but there are some comorbid conditions, so we have to be more cautious. Actually, we are inundated with a lot of questions on social media. One question, I would like Dr. Manjari to take this question. Dr. Manjari, people who have nervous disorders, do they also need to take special precautions? बिल्कुल, नर्वस सिस्टम की कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या कई एपिलेप्सीज हैं जिसमें हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। ब्रेन की कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, वास्कुलाइटिस होती हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं, न्यूरोपैथीज में हम यूज़ करते हैं। तो जो मरीज ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स पे हैं उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बाहर न जाएं और भीड़ भाड़ में सब्जी खरीदने या मंडी में या जहाँ पे भी, घर के अंदर रहें और अपनी डॉक्टर, अपने जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनकी सलाह लें। और दवाई हो सकता है मॉडिफाई करनी पड़े या डोज उसकी कम करनी पड़े या एडजस्ट करनी पड़े। दूसरा है कि ये जो न्यूरो की दवाइयाँ हैं, ज़्यादातर बीमारियों की हम एवरी 3 months 6 months रिन्यू करते हैं। तो ये पैंडेमिक होने के कारण बहुत सारे मरीज हमारे पास पहुंच नहीं पाए हैं और कई तो टेली कंसल्टेशन ले रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते हैं और दूर जगह के लोग जो जिनके पास डॉक्टरों की सुविधा नहीं है उनकी दवाइयां खत्म हो जाती हैं। अब जब दवाइयां खत्म हो जाती हैं तो जैसे दौरे का मरीज है उसके दौरे फिर से वापस आ सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाई का स्टॉक रखें और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन से रिन्यू कराएं। दूसरी बीमारी एक है जैसे कि लकवा है। लकवे में भी रोज दवाई चलती है, जैसे एस्प्रिन और अटोरवास्टैटिन और विटामिन वगैरह चलते हैं। अब ये दवाइयां भी बंद नहीं होनी चाहिए, अगर ये बंद हो गई तो लकवा फिर से हो सकता है। तो एक और बीमारी है जिसको हम डिमेंशियाज बोलते हैं। अब डिमेंशिया में बुजुर्ग लोग को होता है और अगर बुजुर्ग लोग को अगर हम कन्फाइन करके रख देंगे तो उनमें बिहेवियरल इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, कई साइकोटिक हो जाते हैं, कई वॉन्डरिंग करते हैं, कई बाहर जाने की जिद करते हैं, कंट्रोल में नहीं आ पाते। तो उसके लिए फिर नई दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए फिर से आपको टेली कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, यशपाल दिल्ली से। यशपाल, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से यशपाल बोल रहा हूँ। मेरा पोता है 6 महीने का, क्या उसको वैक्सीनेशन के लिए ले जा सकते हैं?
डॉक्टर घनश्याम। बिल्कुल, अभी वैक्सीनेशन एक बड़ा इशू हो गया पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, क्योंकि इसके लिए आपको फिर वही डॉक्टर्स के पास और हॉस्पिटल में भीड़ की जो इशू है उसमें थोड़ा सा कोविड का इन्फेक्शन चांसेस रहते हैं। बट बिकॉज 6 महीने में अप टू 9 महीने में रेगुलर वैक्सीनेशन की जरूरत है, और मेरे ख्याल से आपको टाइम अपॉइंटमेंट लेके किसी डॉक्टर से लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके एग्जैक्ट पीरियड होते हैं, एग्जैक्ट 3 मंथ 6 मंथ में जो वैक्सीनेशन होते हैं, तो आप उसको अवॉइड नहीं कीजिए। अभी इतना आई विल से पब्लिक स्प्रेड नहीं हुआ है या कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है कि आप इतना डरें। आप अपना ट्राई करें कि अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो उसमें ले जाएं, पब्लिक व्हीकल यूज ना करें। और हॉस्पिटल में अगर आपने टाइम पे अपॉइंटमेंट लिया है तो आप वहाँ जाइए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, और मास्क आप तो पहनेंगे, बच्चे को थोड़ा अपने साथ ही रखें, और आप वैक्सीनेशन कराइए। मेरे हिसाब से आपको कराना चाहिए वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर टाइम मिस हो जाएगा तो वो आपके वैक्सीनेशन फिर टोटली डिले हो जाएगी। You should go for that. In fact, I would like to add here that in fact some of the vaccines have, been shown or hypothesized to actually prevent the infection, like BCG and MMR. So MMR and BCG to definitely miss nahi kariye. One doesn't know how correct that is or how wrong that is, but probably these vaccines have some effect on the seriousness of the infection that we face. So please give the vaccines. जी डॉक्टर विभा, बड़ा अहम सवाल था और उसका जवाब दिया डॉक्टर घनश्याम ने। गर्भवती स्त्रियां भी जो हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, जिनको लगातार चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस संक्रमण के कारण उनके भीतर भी एक डर बैठ जाता है और रेगुलर चेकअप के लिए वो नहीं जा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं जाना है, बट वंस अ मंथ वंस इन 2 मंथ्स तो चेकअप के लिए जाना ही होगा। पहले तो वीडियो कॉल एंड टेली कंसल्टेशन पे कंसल्ट कर लें डॉक्टर को, और फिर एक अलग, अगर प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं तो जैसे मैं अलग टाइम दे देती हूँ पेशेंट को, जिसमें और कोई पेशेंट ना हो, ओनली 1 पेशेंट एट दैट टाइम आए। जैसे प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको मॉर्निंग में फर्स्ट पेशेंट टाइम दे दिया, अच्छे से सैनिटाइज करके रखा है। दो आई सैनिटाइज आफ्टर एवरी पेशेंट, आई इवन इम्यूनाइज द चिल्ड्रन। तो उनको मैं बोलती हूँ पेशेंट को कि अपनी एक, मैं भी करती हूँ पूरा अपने तरफ से, बट अपनी अलग से एक शीट लेके आइए, उसको बिछा के उस पे लेटिए, मास्क लगा के आइए, प्रॉपर टाइट फिटिंग मास्क होना चाहिए, और हैंड्स आते ही सैनिटाइज करें। ऐसे करके प्रिकॉशंस लेके चेकअप हो जाता है। पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आई अल्ट्रासाउंड कराने में भी, लेकिन अब ज्यादातर लैब्स खुल गए हैं। इनिशियली बंद हो गए थे, अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहे थे जो टाइम टू टाइम प्रेगनेंसी में होते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज कैचिंग अप नाउ, and with precaution we are doing everything. And also Dr. Vibha, there's a question on Facebook that he's asking that after testing negative, is it possible that we still have the virus, and can we go back to doing a course like cooking, etc.? Yeah, surely. Surely, if you are negative, you can do anything, but even if you are positive and in your home, you can do the cooking. एक और सवाल है, राजेंद्र राजदान है, पूछना चाह रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक के बाद क्या प्रिकॉशन लें? क्या मॉर्निंग वॉक के आने के बाद नहाना बहुत ज़रूरी है, या केवल हैंड, फेस, फीट वॉश करने से ही काम चलेगा? देखिए, जहां तक आप घर के बाहर जा रहे हैं, अगर आप क्लोज्ड कम्युनिटी में हैं, बिकॉज बहुत सारी गेटेड कम्युनिटीज हैं जहां पे आपके कम्युनिटी में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो मे बी आप सिर्फ हाथ मुंह धो के साबुन से यू विल बी ओके। बट अगर आप खुले में जा रहे हैं, जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं और ओपन है पूरा, तो आपको नहीं पता, बिकॉज दे आर नॉट इन योर क्लोज कम्युनिटी, देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम वेरी डिफरेंट लोकेशंस। आपको नहीं पता है जो साथ में चल रहे हैं आसपास में, वो उनको है बीमारी, या वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स है या नहीं। प्लस वॉकिंग का, जैसे आप फॉर एग्जांपल इट इज सेफर अगर सब लोग एक डायरेक्शन में वॉक करें। जैसे डिसाइड कर लिया जाए कम्युनिटी में कि हम क्लॉकवाइज वॉक करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज 5 लोग एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं और 5 लोग क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो देयर विल बी मोर फेस टू फेस इंटरेक्शन। एंड जब वॉकिंग कर रहे हैं तो दूसरे से अगर बात करनी है तो अगेन वही डिस्टेंस एटलीस्ट 6 फीट की आप मेंटेन करके बात करिए, मास्क लगा के बात करिए। वॉकिंग करते हुए कोई स्नीज कर रहा है तो मास्क निकाल के स्नीज नहीं करना है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। पर जब आप खुले में जा रहे हैं, जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है,
इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि वॉकिंग में वैसे भी पसीना निकलता है, आप आके ऐसे कपड़े हल्के पहनिए जो आप तुरंत एक बाल्टी में डालें जिसमें सर्फ है और वो धो डालें, और आप भी नहा लें, तो देयर इज नो हार्म इन इट। गर्मी का मौसम है, आप 2-3 बार भी नहा सकते हैं, वाटर इज अवेलेबल, so that would be advisable. And also, Dr. Manjari, people are now aware, I mean, they are following the social distancing norms, they are washing their hands, they are wearing mask also, it's a new obligatory dress code, but still they are scared. I mean, I can tell you, see, I work in a very busy public hospital. Yeah. I can tell you that people are aware, but they do not understand the importance. Now, if you look at South Africa, in South Africa, the major mode of spread of the virus was the tea rooms. So, log kya karte the? They would, in their work shifts, they would come to these tea rooms, sit down and have tea together. Or, you know, tea and snacks together. So, kya karte ho? Your mask is down, you're having tea and you're gossiping. Yeah. So, that was a very important mode of spread. You will not believe it that even in busy hospitals, the staff, when they want to relax, they go and they sit down together and they're having tea together, the masks are down. So it is very important कि हम closed room में नहीं रहें दूसरों के साथ। हमको खाना है तो हम अकेले में खाएं और चाय भी अकेले में पिएं। Don't come together in congestion. This is very important. It is not that, you know, we don't want networking. The only thing is you should be safe. So avoid closed rooms. Do not go 5-6 people into one closed room and start drinking and eating and chatting together. That is a sure shot, because some people will be asymptomatic carriers. Some people may be just in the prodrome of the infection and they may not even declare that they're infected. So, you know, so those kind of things are there. As Madam was saying, some people don't want to get tested if they have fever, and because they fear that others will discriminate. So, you know, discrimination is actually having a negative effect on the spread. So, responsible citizen will not act like that. So, अब हर जगह गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती ना, वी हैव टू हैव आवर ओन मॉरल पॉलिसी। डॉक्टर पॉलिसिंग इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली निजी तौर पर सभी की जिम्मेदारी है कि इन सावधानियों को अपनाएं। एक और कॉलर है गाजियाबाद से, विनोद जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, थैंक यू। मुझे ये जानना है कि जैसे आंखों के थ्रू भी फैलता है ये, तो आंखों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या जैसे चश्मा पहनते हैं तो उससे कुछ बचाव हो सकता है? और दूसरा दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि जो है अगर हेलो जी पूछिए जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए विनोद। चलिए डॉक्टर घनश्याम, आंखों की सुरक्षा कैसे करें, चश्मे से क्या बचाव हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से दर्शक ने ये पूछा कि अगर आंखों से जैसे म्यूकोजा से वायरस जा सकता है, तो इसके लिए गॉगल्स इज प्रोटेक्टिव। हम हॉस्पिटल में जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो कोरोना वॉरियर्स हैं, एक शील्ड भी यूज करते हैं। तो बट एज अ कम्युनिटी एवरीवन शुड नॉट बी वेयरिंग अ शील्ड, मुझे नहीं लगता। बट चश्मा पहना हुआ तो दैट विल बी प्रोटेक्टिव। आप उसको घर आके वॉश कर लीजिए, साफ से कर लीजिए, और उसके बाद अपना हैंड हाइजीन करिए, तो स्पेक्स कैन हेल्प यू। एंड जनरल पब्लिक में अभी हम सबको गॉगल्स या शील्ड के लिए नहीं एडवाइस कर रहे हैं। इतना भी कंटेजियस नहीं है कि पूरा कि सबको आईज में गॉगल्स पहन के घूमना पड़े। बट मे बी आफ्टर सम टाइम जब इन्फेक्शन बढ़ जाए, अभी दिल्ली में 10% के अराउंड ही जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, और कम्युनिटी में तो 2 से 4% ही अभी तक पता चला है कि कोरोना वायरस पहुंचा है। तो अभी जनरल पब्लिक के लिए अगर स्पेक्स पहने तो बहुत अच्छा, बट घर आके आप हाथ और आईज भी वॉश कर लें, और जब भी आप चश्मा भी साफ कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा सोप से अपने हाथ को और सैनिटाइजर भी करें। एब्सोल्युटली, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अपने हाथ आंखों पे मत लगाइए, आंखें नहीं मलिए। जी डॉक्टर, बहुत लोगों की हैबिट होती है ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, वो नहीं करना। बिल्कुल, तो ये कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर ही हम कोविड संक्रमण से बच सकते हैं, और उन्हें अपनाना हमारे लिए नहीं सभी के लिए ज़रूरी है। आप तीनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्पीक में आने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां बताने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। Absolutely, Rajni, and hope we answered all your queries, and sorry to those people, we really apologize whose questions could not be taken, but don't worry, we'll come back tomorrow, and that's all we have in our
special broadcast. Stay tuned for more news and updates. Rajni, you want जी, to add anything? बिल्कुल। और जब आप हमें कॉल करें तो अपने जब सवाल पूछते हैं तो हम बार बार आपसे इल्तिजा करते हैं कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। और कल भी हम आपके सामने हाजिर होंगे जहां पर कोविड संक्रमण से जुड़े आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। साथ ही आपके मन में जो भी शंका है, जो भी भ्रम है इस बीमारी को लेकर, जिसे आप दूर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और सीधे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो मौजूद रहेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।